So children, in our previous lecture, we discussed about the various functions of the plasma membrane, right? And in that we discuss about the 5 different functions of the plasma membrane. That is diffusion, osmosis, selective permeability, endocytosis, and exocytosis. So we have done with the first part of the cell, that is the cell membrane. Okay. So अगर आप previous lectures अगर आपने attend किए हैं तो आपको पता होगा कि सेल के various parts होते हैं, right? So the parts of the cell are the cell membrane, which is there in both the cell, that is plant cell as well as in animal cell. After that, the cytoplasm is there, which is a jelly-like substance scattered all over the cell, right? And the next is the main controlling part of the cell that controls the all activities of the cell, and that part is called nucleus. And apart from this 3 part, that is the cell membrane, cytoplasm, and the nucleus, the subunits of the cell, or we can say the small particles, are also situated in the cytoplasm of the cell, and they are nothing but the cell organelles. Okay, and the various cell organelles performs the various functions. So let's discuss the part that is called nucleus in detail. So children, before discussing its structure and the function of the nucleus, you should know exactly where it is situated. So children, if you look at the structure of the plant cell, mature plant cell, it is situated in the periphery of the cytoplasm. What does it mean? It is situated at one side of the cytoplasm. But if you look at the animal cell, in animal cell, the nucleus is situated in the center of the cell. Okay, but in first part of the tissue chapter, we discussed that in the meristematic cells, which are actually not mature cells, which are continuously dividing cell, in those cells, the nucleus is very prominent. Okay, it means it is situated in the center of the cell, right? So let us discuss the most important part of the cell, and that is the nucleus. So look at the screen, children. So how is the structure of the cell look like? If I'll try to draw an animal cell, okay, it will be like this, right? And the plant cell is somewhat like this. This is an outermost covering of the animal of the plant cell, and that is called cell wall, right? Inside this, there is a plasma membrane, and the nucleus is situated here at the center, and the big permanent vacuole is there inside. In case of the animal cell, the nucleus is situated at the center. Okay, and in between the cytoplasm is there, right, where other cell organelles are located. So this is the main difference, that where the nucleus is situated in plant cell and animal cell. Now children, let us discuss the structure of the well-developed nucleus in detail. You know very well that the prokaryotic cell, such as bacteria, do not possess nucleus. But in bacterial cell, there is a presence of single circular DNA, which is called nucleoid. And this nucleoid carry out the various activities, and ultimately it controls the all activities of that particular bacteria. No doubt that the DNA only is the genetic material which is present in all the living cell, which have the all information of that particular individual. Say for example, assume yourself, you have a particular height, okay, you have the particular structure of your hair. Some of the students, they have, okay, some of the people, we can say, they have the straight hair, some of them have the curly hair, okay, some of
the person have very dark skin due to presence of the high melanocytes. Okay, some of the people have very fair skin due to less melanocytes in their skin. Now, why these differences are there? Why somebody's nose is too long, too broad, right? So this differences in the morphology, it means the differences in the external feature of that particular individual is due to the difference in the DNA. ठीक है, कोई भी पर्सन हो, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो किसी का भी फेस किसी से मैच नहीं करता है. अब हम बोलते हैं कि हाँ कि कोई फादर है, ठीक है, और उसका बच्चा है, तो बड़ा हो जाने के बाद वो थोड़ा बहुत सेम दिखता है, या फिर हमको कमेंट भी आती है ना ऐसे कि अरे आप तो आपके मम्मी के जैसे दिखते हैं, ठीक है, आप तो आपके पापा के जैसे दिखते हैं, बराबर, ऐसे कमेंट्स आते हैं. सो ऐसे दिखते हैं मतलब क्या? बिकॉज वॉट एवर द DNA that we have, that obtained from our parents, right? So we have the same characteristics as our parents have, but we have the two various copies of the DNA. One is from the father and another is from the mother. That's why we have the some features of ourselves that can match us with our father, and some of the feature can match us with our mother, right? So DNA ही ये ऐसा एक बायोमोलिक्यूल है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में, जिससे उस ऑर्गेनिज्म का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफाइन होता है, राइट? और यही DNA in eukaryotic cell like plant cell and animal cell, ये एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड है. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट न्यूक्लियस. I hope student the screen is visible to everyone, right? So what is this structure? If you look at the outermost part of this structure is the nuclear membrane, which is represented in a diagram by yellow color, right? So this nuclear membrane is also known as nuclear envelope. जैसे कि समझो कोई पेपर का एनवेलप है, कोई डॉक्यूमेंट का एनवेलप होता है, ठीक है, तो वो क्या काम करता है? समझो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पेपर है, वो मुझे किसी को पास करना है, तो वो मैं ऐसे ओपनली उसको पास नहीं करूंगी, राइट? मैं उसको एक एनवेलप में अंदर रख के उसको पैक करके भेजूंगी. सो एनवेलप का काम क्या होता है यहाँ पे? प्रोटेक्शन, राइट? सो हियर ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, or we can say the nuclear envelope, is the protection, right? Inside this nuclear membrane, children, you can see this background structure which is represented by the yellow color again, okay, that background matter. This background structure is called as nucleoplasm, which is actually not labeled there in the diagram, so I'm labeling it this part, okay, the background part. This is the nucleoplasm. Okay, what is the function of it? Is same as like a cytoplasm. जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है, राइट? वैसे ही न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म. और इसका जो कंपोजिशन है, इट इज सेम एज लाइक अ कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म. बट यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि दिस न्यूक्लियोप्लाज्म हैव more amount of the proteins and the ribosomes. Okay, now look at the thread-like structure. This one. Look at this thread-like structure. What is this? This thread-like structure is nothing but the DNA. क्या है ये? ये यूकैरियोटिक सेल का DNA है. Okay, DNA का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में. DNA stands for deoxyribonucleic acid. Okay, deoxyribonucleic acid. And what is the function of DNA? The DNA controls all the activities, rather we can say the all information of an individual is coded by the DNA. किसी भी इंडिविजुअल की या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके जो भी एक्टिविटीज है, उसका जो अपीयरेंस है, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स
are coded by the DNA. Okay, so this thread-like structure is known as chromatin, or which is also called as DNA. And this DNA is situated in the jelly-like substance, this background part. Okay, this jelly-like substance, this is called nucleoplasm, as I told you earlier. अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर पोर से, ओके, पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब क्या होता है, होल, ठीक है, इसे स्मॉल स्मॉल होल्स वहां पर होते। सो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दिस न्यूक्लियर एनवेलप हैव द टाइनी होल्स, ओके, दे हैव द टाइनी होल्स। अभी होल्स क्यों है, क्या न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ तो भी सिंथेसाइज हो रहा है जिसको इन पोर से बाहर निकाला जाता है? सो यस, सो ऐसा क्या मटेरियल है जो इस न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है? सो दैट इज द मटेरियल लाइक आरएनए, प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स, ये सिर्फ 3 चीजें हैं, ये न्यूक्लियस से बाहर रिलीज करने के लिए ये होल्स का यूज किया जाता है। एंड दिस पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स because they are the pores of the nucleus, so the name is given nuclear pores, right? अब देखते हैं कि ये जो ऐसे डार्क किया हुआ पार्ट है बड़ा सा, ठीक है, ये क्या है? इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे कि सेल का एक न्यूक्लियस होता है, राइट? वैसे न्यूक्लियस का भी उसका खुद का एक न्यूक्लियस है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। The spelling difference is there. Look at the spelling of the nucleus, children. This is nucleus, right? And this is the nucleolus. Okay, nucleolus. तो क्या एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे, nucleus of the nucleus, ऐसे लिखेंगे? No. Then what we will write in the examination? Nucleolus is a part of the nucleus where the RNA molecules, where the RNA and the proteins are aggregated. Okay, क्या है nucleolus? It is a part of the nucleus where the RNA and the proteins are aggregated. ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स और आरएनए यहाँ पे क्या है, एग्रीगेटेड है, और ये दोनों का यूज करके, ये आरएनए और ये प्रोटीन, ये दोनों का यूज करके यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक नई चीज बनाई जाती है। The new thing is synthesized in the nucleolus with the help of this RNA and protein. And what is that thing? This thing is called ribosome. Look at the screen, I'm writing here. Okay, ribosomes. So ये RNA और ये प्रोटीन्स, इनकी हेल्प से क्या बनाए जाते हैं? Where ribosomes are synthesized. So what you will write? Ribosomes are synthesized in the nucleolus. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? चीज को बनाना, ठीक है, उसको फॉर्म करना, मेक द थिंग, राइट? So student, this nucleolus is a site of ribosome synthesis, right? जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, sometime in a multiple choice type of question or sometime in a one word answer type question वहां पर आता है, that is what is the site of ribosome synthesis? ठीक है, राइबोसोम सिंथेसिस की साइट कहां पर है सेल में? सो आप वहां पे किसके बारे में लिखने वाले हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आता है, कैसे? नेम द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इतना सिंपल छोटा सा क्वेश्चन, नेम द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। नेम मतलब क्या कि उसको नेम करो, किसको?
फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अब फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई तो भी चीज बनती है, राइट। सो राइबोसोम्स कहाँ पर बन रहे हैं स्टूडेंट, राइबोसोम्स हमारे बन रहे हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। सो हम लिखेंगे न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, डीएनए के बारे में उसका फंक्शन डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में डिस्कस कर लिया, और न्यूक्लियर पोर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली ये तो ईच एंड एवरी पार्ट के फंक्शंस हो गए, बट ओवरऑल, okay, so children, what is the function of nucleus? Okay, why it is there in the cell, why it is situated in the cell? So basically हम बोलते हैं कि देखो कोई भी समझो एक ऑफिस है, ठीक है। सो ये ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो भी डिपार्टमेंट होता है। समझो कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, राइट। तो फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे ऊपर और एक डिपार्टमेंट होता है, राइट। सो वैसे हम बोल सकते हैं कि सेल के जो वेरियस एक्टिविटीज है, दिस वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। जैसे हम बोलते हैं कि डीएनए जो होता है वो इंडिविजुअल की सारी इंफॉर्मेशन कोड करता है। जैसा डीएनए होगा वैसे उस पर्सन का अपीयरेंस और वैसे उसका बिहेवियर। सो इट इज द सेम कि जिस तरीके का डीएनए है, जिस तरीके के जीन्स, उस तरीके का सेल क्या करेगा, राइट। सो activity of the cell are controlled by the nucleus, right? So यहाँ पर मैंने एक वर्ड आपके सामने डिस्कस, एंड दैट इज द जीन। ओके, तो ये जीन क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। I hope the screen is visible, children. Right. Example, here I am drawing the structure of the DNA. Okay, DNA is double stranded. ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। इसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो स्ट्रैंड में, ठीक है। ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, दिस आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। अब ये डीएनए जो ऐसे ट्विस्टेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये कितना लंबा होता है? ऐसा बोला है कि अगर एक सेल अगर हमारा डीएनए हमने से स्ट्रेच किया तो अर्थ से लेके मून तक का ये डिस्टेंस हो सकता है। इतना बड़ा डीएनए हमारे इतने छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर कैसे, ठीक है। सो ये जो हमारे माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर सिचुएटेड है, तो ये उसके सुपर कॉइलिंग से सिचुएटेड है। कैसा है? सुपर कॉइलिंग से सिचुएटेड है। अब अगर देखते हैं कि ये डीएनए का समझो ऐसे हमने एक फ्रैगमेंट ले लिया, ठीक है, ये सिंगल फ्रैगमेंट, दिस इज वन मोर फ्रैगमेंट, दिस इज अनदर फ्रैगमेंट। सो दिस फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन, ठीक है। एक डीएनए के सिंगल फ्रैगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। एंड दिस वन जीन कोड फॉर वन कैरेक्टर, वन जीन कोड फॉर वन कैरेक्टर। मतलब क्या? आगे आपको बताती हूँ, पहले हम सुपर कॉइलिंग पढ़ लेते हैं। सो जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए ऐसे सुपर कॉइल्ड होके हमारे सेल के अंदर ऐसे डबल बाइंडेड होता है, ठीक है। ऐसे पूरा ऐसा ही जाएगा, फिर बैक साइड से घूम के इस तरीके से, ठीक है, ऐसे डबल बाइंडेड होता है। तो ऐसे अलग अलग न्यूक्लियोसोम्स ऐसे कंबाइन होके ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया था 1 2 3 4 5 6 एंड 8 एंड डीएनए का डबल बाइंडिंग, ये जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये थ्रेड मतलब ये क्या है? डीएनए। ओके, सो जब ये हिस्टोन, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और ये कितने होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में?
our eukaryotic cell have this 23 pairs of chromosome. How much? 23 pairs of chromosome. मतलब इतना बड़ा डीएनए. माय गॉड, देखो आपने कितना बड़ा था ये. पहले क्या हुआ, डीएनए का ऐसे ट्वाइस वाइंडिंग ओवर द हिस्टोन प्रोटीन, फिर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, और ये न्यूक्लियोसोम कॉइल करते 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 फिर यहाँ पे क्रोमोसोम बन रहा है. तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट? एंड if we try to unwind this DNA from the chromosomes, 23 pairs of chromosome, और उसमें से अगर ये डीएनए को ऐसे अनवाइंड करते गए, सो ऐसे बोला जाता है कि मून तक का डिस्टेंस ये कवर कर सकता है. इतना बड़ा डीएनए हमारी यूकैरियोटिक सेल में सिचुएटेड है. ठीक है. अब ये जो क्रोमोसोम्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, इनका क्या फंक्शन है? जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके डिफरेंट फ्रैगमेंट्स होते हैं. एंड सिंगल फ्रैगमेंट इज नोन एज जीन. ओके, ये फ्रैगमेंट्स हम नहीं करेंगे कि डीएनए को ले लिया और हमने उसको कट कर दिया. नहीं, ऐसे अलग अलग जीन्स एक दूसरे को बाइंड होके एक पूरा डीएनए बनता है, राइट? अब मैं बोलती हूँ कि वन जीन कोड्स फॉर वन कैरेक्टर. वन जीन कोड्स फॉर वन कैरेक्टर. मतलब क्या? अब जैसे कि किसी इंडिविजुअल को आप एज्यूम करो, ठीक है, उसका डार्क कलर है, ये उसका एक कैरेक्टर हो गया. तो उसका कलर डार्क होने के लिए उसके डीएनए में सेपरेट जीन. उसके आई का कलर, अगर उसके आईज का कलर अगर ब्लू है तो ब्लू आईज होने के लिए सेपरेट जीन. अगर उसके हेयर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट हेयर होने के लिए सेपरेट जीन. बराबर. सो ये पूरा जो हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो इतना बड़ा डीएनए है और जो उसके स्मॉल फ्रैगमेंट्स है, वो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करते हैं और वही जीन ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं. एंड द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो वो यही वजह है कि हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही हम में आते हैं. ठीक है. द इंडिविजुअल ट्रांसमिट्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि मदर एंड फादर दोनों में किसी के भी आईज ब्लू नहीं है, अपीयरेंस उनका कैसा है, ब्लैक आईज का है. बट ऐसा हो जाता है कि आने वाला जो इंडिविजुअल है उस बेबी के आईज ब्लू हो सकते हैं. तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो ये हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में. ठीक है, इन चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में. अगर आपकी वीडियोस अभी देखने हैं, सो जब मैं आपको पढ़ा दूंगी, सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू कैन चेक ओवर देयर. ठीक है, राइट. सो द मेन फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम in the individual body is to decide the characteristics and to transmit these characteristics from one generation to another. अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेसिकली कितने होते हैं? 23 पेयर्स के होते हैं, राइट? उसमें से क्या होता है, 22 पेयर्स आउट ऑफ 22 पेयर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द स्किन, ठीक है, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द ईयर, राइट, एवरीथिंग. और जो वन पेयर होता है, वन पेयर, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम एंड दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. कि वो जो पर्सन है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं. और बाकी के जो 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम है दैट डिटरमाइंस द अदर बॉडी फीचर्स, द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. तो ये क्रोमोसोम्स को भी नाम है. तो देखते हैं कि इनके क्या नाम है. So this 22 pairs of the chromosome that determines body characteristics. Okay, they are called
सोमैटिक क्रोमोसोम. क्या बोलते हैं इनको? सोमैटिक क्रोमोसोम, या तो इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स. Note down, children. They are called somatic chromosomes or autosomes. And the one pair that determines sex of the individual, these chromosomes are known as sex chromosomes. Okay, they are called sex chromosome. तो वो कौन से होते हैं? फीमेल में होते हैं एक्स एंड एक्स, और मेल में होते हैं एक्स एंड वाई. ठीक है, ये वो पेयर है. फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर होगी दैट इज एक्स एंड एक्स. मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर होगी दैट इज एक्स एंड वाई. राइट? So student, in 10th standard, we will discuss that how these chromosomes are responsible for determination of the sex of that particular individual. And I think this you have already done in the 8th standard, right? That how this chromosome determines the sex of the individual. So in today's lecture, we discuss about the location, structure, and the function of the nucleus in detail. Now this is discussion time, student. If you have any doubt, you can ask your doubt right now.